Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic Nagpur. I welcome all for the video series of Linear Integrated Circuit. Today I am going to deliver a lecture on Chapter 1, that is the Fundamentals of Operational Amplifier. And today's topic of discussion for the lecture 3 is op-amp parameters. We have already discussed about some different op-amp parameters in the last lecture. The course outcome for this course as use op-amp in a linear integrated circuit. These linear integrated circuits having the different application by using op-amp, we will discuss all that different application in linear integrated circuits. Chart shows CO and PO mapping, which we have already discussed in the last lecture, how this CO getting mapped with the different POs, and there are total 7 number of POs as per the new norms of NBA. We have discussed in the last semester total 10 POs, but in this semester and onwards we will discuss about the 7 different POs. Here the CO1 getting mapped with the PO1, PO2, 3, 4 and the 6 and 7. After the completion of this topic, learners will be able to, it means you people able to select the parameters to be considered for the given application of the op-amp with justification. As we studied some kind of op-amp parameters or the characteristics of op-amp in the last lecture, उसी के आगे के जितने भी पैरामीटर्स है वो आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है और आप लोग इतना एबल हो जाओगे कि कौन से पैरामीटर्स ऑप-एम्प के कहाँ पे यूज करना है और उसका जो फॉर्मूला है या फिर अगर उसको कंसिडर करते हो तो कहाँ पे और कौन से एप्लीकेशन में यूज करना, इसको सिलेक्ट करने के लिए यू कैन बी एबल. इन द लास्ट लेक्चर वी वर स्टडीड अबाउट, क्या पढ़ा था? तो अपन ने पढ़ा था मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ऑप-एम्प. ऑप-एम्प के कौन कौन मैन्युफैक्चरर्स है और उसको किस तरह से उन्होंने डिराइव किया है. उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ड्रॉ कैसे करते हैं और उसका हर एक ब्लॉक का डिस्क्रिप्शन कैसा है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. उसके बाद में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप-एम्प जैसे कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स को आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसी के आगे के पैरामीटर आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑप-एम्प पैरामीटर्स. देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, which diagram consists of the two different parameters, that is the inverting terminal and the non-inverting terminal, along with the two power supply, that is the plus V and the minus V. और आप लोगों को पता है कि op-amp always consists of the two input and the only one output. This diagram shows the same features of the op-amp. देखो ये डायग्राम में कुछ चीजें दी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि op-amp having the some kind of gain. क्या है? gain which is denoted as a A, which is denoted as a A, and the op-amp it is nothing but your operational amplifier जिसको बोलते हैं, उसी को अपन आप लोग क्या बोल रहे हो? डिफरेंशियल एम्पलीफायर. और उस op-amp को डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था. तो देखो यहाँ पे ये जो वोल्टेज है दैट इज नथिंग बट योर Vn और यहाँ पे Vp, that is the Vn it is nothing but your negative voltage and Vp it is nothing but your positive voltage, जिसको अपन बोलेंगे इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. उसके बाद में मैंने एक चीज और से बताई थी कि whenever we are going to calculate the difference between the two terminal, जब भी मैं दो टर्मिनल का डिफरेंस निकालने जाऊंगी तो I will always consider the first parameter, that is nothing but your non inverting terminal. बताया था मैंने कि जब भी मैं डिफरेंस निकालने के लिए जाऊंगी I will consider the positive terminal as a first parameter and then differ that parameter with the another parameter, that is the inverting terminal.
बराबर है, वोल्टेज ऑफ द इन्वर्टिंग टर्मिनल, जिसके साथ साथ वी विल गेट द आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंशियल वोल्टेज। कैसे निकालते हैं, तो अपन करेंगे क्या, Vp माइनस Vn, Vp माइनस Vn, और उसको कैलकुलेट करेंगे द गेन ऑफ दिस डिवाइस, the gain of this device, and we will get the output voltage such as gain into difference between the voltage of the two terminals of op amp. Is that clear to everyone? ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है कि आप लोगों को जब भी वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज निकालते टाइम always you have to consider the gain of the op amp. क्या करना पड़ेगा, gain of the op amp और gain of the amplifier. So this is a equation of this particular op amp. उसके बाद में यहाँ पे पैरामीटर को देखते हैं, तो सबसे पहला पैरामीटर है दैट इज द इनपुट बायस करंट। क्या है, इनपुट बायस करंट, जो कि डिनोट करता है किससे, IB। IB आप इसको एब्रीविएशन में आई स्मॉल बी भी कर सकते हो, तो आप लोगों को तुरंत ध्यान में आएगा, क्योंकि करंट ऑलवेज डिनोटेड एज आई, और यहाँ पे अगर आप इनपुट बायस बोलते हो तो यहाँ पे आप लोग स्मॉल बी भी कंसिडर कर सकते हो। तो क्या होता है इनपुट बायस करंट, जब भी आप लोग इनपुट बायस करंट लेते हो तो यू हैव टू कंसिडर दिस बोथ द टर्मिनल्स आर ग्राउंडेड, बोथ द टर्मिनल्स आर ग्राउंडेड। और ग्राउंड अगर है तो कब, तो यहाँ पे आप लोगों को दो रेजिस्टर्स को कनेक्ट करना पड़ेगा दोनों टर्मिनल्स पे। क्या करेंगे, दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट करेंगे, और जब मेरा पहला टर्मिनल है तो उससे मेरा करंट फ्लो होगा क्या, IB1, और यहाँ से मेरा करंट फ्लो होगा क्या, IB2। क्लियर, मतलब इनपुट बायस करंट में आप लोगों ने इनपुट करंट दिया, तो इनपुट करंट आपके पास दोनों टर्मिनल्स में जाएगा, IB1 एंड द IB2, बराबर है। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या बोला है, इनपुट बायस करंट क्या होता है, द एवरेज ऑफ द करंट, एवरेज करना है मतलब क्या करना है, एडिशन करना है, एवरेज ऑफ द करंट दैट फ्लोज इनटू द इन्वर्टिंग एंड द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प। मैंने ऑलरेडी बताया कि आप लोगों को यहाँ से फ्लो होने वाला करंट दैट इज द IB1, और इस टर्मिनल से फ्लो होने वाला करंट दैट इज द IB2, और उसका एवरेज मतलब IB1 प्लस IB2, और दोनों टर्मिनल से जाने वाला है, फ्लो होने वाला है, तो उसका क्या आएगा, एवरेज निकाल रहे हैं मतलब डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। तो VO का इक्वेशन कैसे आएगा, यहाँ पे IB1 प्लस IB2 डिवाइडेड बाय 2, जो कि रहेगा आपका इनपुट बायस करंट। तो यहाँ पे इनपुट बायस करंट को लिखते टाइम कैसे लिखेंगे, IB इज इक्वल्स टू IB1 प्लस IB2 डिवाइडेड बाय 2। मैं आप लोगों को यहाँ पे बता भी सकती हूँ कि कैसे उसको लिखना है। देखो IB1 प्लस IB2 प्लस IB2 डिवाइडेड बाय 2। इज दैट क्लियर टू यू? तो दिस इज अ इक्वेशन फॉर किसके लिए, इनपुट बायस करंट के लिए, जो कि है IIB इज इक्वल्स टू IB1 प्लस IB2 डिवाइडेड बाय 2। इसी के ऊपर से आप लोग उसका डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि द एवरेज ऑफ द करंट फ्लोज टू these two terminals divided by 2. Is that clear to everyone? So this is all about the input bias current. Then what is input and output impedance? उसके बाद में देखते हैं इनपुट और आउटपुट इंपीडेंस क्या होता है। तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इनपुट्स, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इनपुट एंड द आउटपुट टर्मिनल्स टू वैरिंग द वोल्टेज। मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा दैट इज द
आप लोगों का जो भी रहेगा दैट इज नथिंग बट योर इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस। मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आपने ऑफर किया है इनपुट साइड से और जो कि वोल्टेज के आउटपुट साइड के वोल्टेज को वैरी करने के लिए यूज होता है दैट इज नथिंग बट योर इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस। दिस क्वांटिटी ऑलवेज एक्सप्रेस इन ओहम। किसमें एक्सप्रेस होगा? ओहम में। इम्पिडेंस ऑलवेज एक्सप्रेस इन ओहम। तो दिस इज द इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप एम्प। देन व्हाट इज द ओपन लूप गेन? ओपन लूप गेन, तो देखो ओपन लूप गेन क्या होता है, जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर में क्लोज लूप गेन देखा था, तो उसी टाइप से आप लोगों को ओपन लूप गेन को भी कैलकुलेट करना है। तो इट इज द ओवरऑल वोल्टेज गेन और द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। मतलब इस पर्टिकुलर ऑप एम्प का जो भी ओवरऑल गेन होगा दैट इज नथिंग बट योर ओपन लूप गेन। सभी पैरामीटर्स को अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वी विल नीड इट, इसकी अपने को ज्यादा जरूरत रहेगी। ठीक है, तो दिस इज द नथिंग बट योर इनपुट बायस करंट, इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस एंड ओपन लूप गेन। देन देखो यहाँ पे कुछ अलग से और पैरामीटर दिए हैं। चलते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की तरफ। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, अभी देखो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है। तो जैसे कि ये डायग्राम शो कर रहा है, दिस इज अ ऑप एम्प, दिस इज अ ऑप एम्प which consists of the two terminals, inverting non-inverting terminal and the input terminal inverting terminal along with the output voltage। बराबर है। तो यहाँ पे देखो आपको दिखाई देगा कि वोल्टेज जो है वो दोनों टर्मिनल्स में है, दोनों टर्मिनल्स में। जैसे कि इनपुट बायस करंट देखा था तो अपन ने इनपुट करंट का इक्वेशन लिखा था। यहाँ पे अगर अपन लिखेंगे तो इसके लिए अपन ने VIO का इक्वेशन अपने को लिखना पड़ेगा, दैट इज द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, दैट इज द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। और देखो यहाँ पे जब भी मैं लिखूंगी तो कैसा आएगा, इट इज अ वोल्टेज that must be applied between the two terminal of an op amp to null the output, to null the output। मतलब यहाँ पे कैसे आएगा, इन दोनों का डिफरेंस। यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कैसे आएगा, हमेशा ध्यान में रखना है, डिफरेंस निकालना हो या फिर एडिशन करना हो, यू हैव टू गो फ्रॉम फर्स्ट पैरामीटर दैट इज द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और द इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज क्या है, VDC1 और इन्वर्टिंग का है VDC2, तो मेरा क्या आएगा VDC1 माइनस VDC2। जैसे ही अगर मेरा यहाँ का इक्वेशन कैसा है 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 है यहाँ पे थर्ड टर्मिनल है, सेकेंड टर्मिनल है। तो यहाँ पे देखो अगर मैंने VDC1 की वैल्यू अगर 10 ली है और VDC2 की भी वैल्यू 10 ली है, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वेशन, 10 minus 10 and the output becomes 0, output becomes 0। So that is nothing but your input offset voltage। So it is a voltage that must be applied between the two terminal of the same voltage को आप लोगों को दोनों टर्मिनल को अप्लाई करना है, ऐसा अप्लाई करना है कि जैसे कि आप लोगों का आउटपुट वोल्टेज becomes 0। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। Then go for the input offset current, next parameter it is the input offset current। तो देखो the algebraic difference between the current in the inverting and the non-inverting terminal क्या है, input offset current क्या है कि algebraic मतलब देखो IB1 and the IB2 इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका इक्वेशन आपके पास आएगा जैसे कि इनपुट आपका कौन सा है, इनपुट ऑफसेट करंट, तो अपन इसको लिखेंगे IIO, यहाँ पे IIO, और अल्जेब्रिक निकालना है मतलब अपन मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको कैलकुलेट करेंगे, IB1 IB1 माइनस IB2। क्लियर एवरीवन? तो दिस इज अ अल्जेब्रिक फॉर्म
This is a algebraic form of the input offset current. Clear everyone? तो ये हो गया input offset current. ठीक है, तो the algebraic difference between the current in the inverting and the non-inverting, it is nothing but your input offset current. So this is the equation for the input offset current, and this diagram shows the difference between the two current along with the power supply and the output voltage. Clear everyone? उसके बाद में most important parameter, that is the common mode rejection ratio. क्या है? common mode rejection ratio. हमेशा ध्यान में रखना है कि आप लोगों के पास दो गेन रहने वाले हैं. One is the differential mode gain and the second one is the common mode gain. क्या रहने वाला है? differential mode gain and the common mode gain. तो जब भी मैं CMRR, that is the common mode rejection ratio को एक्सप्लेन करूंगी या डिस्क्राइब करूंगी, तो मेरे पास क्या रहेगा? differential mode gain, that is which is the denoted as a AD, and the common mode gain which is denoted as a AC. तो इसका जो रेशियो रहेगा that is the CMRR. उसका जो रेशियो रहेगा that is CMRR, जिसको अपन लिखेंगे क्या? RR, that is AD by AC. AD by AC. AD by AC. So this is a CMRR, that is common mode rejection ratio, which is nothing but the ratio of the differential mode gain to the common mode gain. Clear everyone? So this is the another parameter of the op amp. Let's go for the next, that is the slew rate. Slew rate क्या होता है? So it is defined as the maximum rate of change of output voltage per unit time. क्या होता है slew rate? कि जितना maximum rate of change of output voltage per unit time. अगर मैंने आप लोगों को देखो यहाँ पे अगर मैंने नॉर्मली आप लोगों को स्क्वायर वेव दी और स्क्वायर वेव को अगर मैंने स्लाइटली चेंज किया एज पर द आउटपुट वोल्टेज, तो मेरा जो स्क्वायर वेव है वो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो जाएगा एट द आउटपुट साइड. तो उसको ऐसा अगर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज आ रहा है आउटपुट वोल्टेज में, तो दैट इज नथिंग बट योर स्लीव रेट. उसके बाद में PSRR, ये 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन नॉर्मली पूछा जाता है. पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, तो इट इज अ चेंज इन ऑप एम्प्स यूनिट ऑफसेट वोल्टेज caused by variation in supply voltage. It is the change in op amps input offset voltage. क्या है? Input offset voltage caused by variation in the supply voltage. ठीक है, तो this is all about the PSRR and the slew rate. So these all are the various parameters of the op amp, and these are all are the most important parameters of op amp, जो कि आप लोगों को आगे जब डेरिवेशन अपन पढ़ेंगे निकालेंगे उस टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, ताकि तुम लोग अच्छी तरीके से डेरिवेशन को अंडरस्टैंड कर सको. देखो अभी अपन ने आइडियल एंड नॉन आइडियल ऑप एम्प को पढ़ा है, तो कंपैरिजन ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल ऑप एम्प कैसा होता है? क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द प्रैक्टिकल एंड द आइडियल वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर पैरामीटर्स. तो देखो अपन ने ये सब पैरामीटर्स यहाँ पे पढ़े हैं, जैसे कि वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, बैंडविड्थ, CMRR, स्लीव रेट, PSRR, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, बायस करंट एंड इनपुट ऑफसेट करंट. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पैरामीटर्स है, उसकी प्रैक्टिकली वैल्यू कितनी आनी चाहिए और आइडियली वैल्यू कितनी आती है. देखो आइडियल के लिए अपन नॉर्मली तो जा नहीं सकते, क्योंकि आइडियल वैल्यू अपने को कभी नहीं मिलेगी, बट वी विल गो फॉर द प्रैक्टिकल वैल्यू, जो भी आप लोगों को मिलने की अपन कोशिश करते हैं, बट वो भी अपने को अच्छी तरीके से नहीं मिलती. तो दीज ऑल आर द प्रैक्टिकल वैल्यू एंड द आइडियल वैल्यू ऑफ द आइडियल एंड नॉन आइडियल ऑप एम्प, जिसको अपन आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है. क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव द
आइडियल वैल्यू एंड द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन, बैंडविड्थ, स्लीव रेट, PSRR, जो कि आधा मार्क्स के लिए रहता है, 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर आपका सही आंसर है तो यू विल गेट द 2 मार्क्स, अदरवाइज आप लोगों के उतने मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो आप लोगों को ये टेबल अंडरस्टैंड करने के लिए तो कोई अपने पास ट्रिक नहीं है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसको ध्यान में रखना है। और जैसे कि आप लोगों की आइडियल वैल्यू अगर इन्फिनिटी है, उसको आप लोगों के पहले ध्यान में रख लेना है। CMRR आपको मोस्टली पूछा जाता है, स्लीव रेट भी पूछा जाता है, उसके बाद में इनपुट बायस करंट, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज भी मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। उसके बाद में देखो कंटिन्यूअसली अगर मैं अभी देखूंगी कि कौन से, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि ऑप एम्प दोनों एप्लीकेशंस पे वर्क करता है, AC एप्लीकेशन एज वेल एज द DC एप्लीकेशन। तो व्हेनेवर यू गोइंग फॉर द AC एप्लीकेशन, आप लोगों को फॉलोइंग पैरामीटर्स कंसीडर करना है, जैसे कि इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर, उसके बाद में आउटपुट वोल्टेज स्विंग, स्लीव रेट जैसे कि अपन ने पढ़ा अभी, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एंड द करंट, इक्विवेलेंट नॉइज वोल्टेज एंड करंट एंड द गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। उसके बाद में अगर व्हेनेवर गोइंग फॉर द DC एप्लीकेशन के लिए अगर जाते हो तो यू हैव टू कंसीडर फॉलोइंग पैरामीटर, दैट इज द इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट वोल्टेज स्विंग, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एंड करंट वोल्टेज गेन लार्ज सिग्नल। दिस ऑल आर अबाउट द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ ऑप एम्प, जो कि अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़े हैं। तो वी विल कंक्लूड हियर द डिफरेंट ऑप एम्प पैरामीटर्स एंड विल स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। सो दिस लेक्चर समराइजेस विथ क्या क्या पढ़ा अपन ने, तो अपन ने फंक्शन ऑफ द गिवन ब्लॉक, जो कि अपन ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। उसके बाद में कैसे कैसे पैरामीटर्स को सिलेक्ट करना है फॉर द डिफरेंट गिवन एप्लीकेशन, उसको जस्टिफाई कैसे करना है, उसको ध्यान में कैसे रखना है, ये भी अपन ने इस लेक्चर में पढ़ा है। सो thank you so much for listening this lecture very carefully. In the next lecture we will study about the transfer characteristics of op amp. Thank you so much.